Good morning, students. So, as yesterday we have started our new chapter, that is chapter number 6, living and non-living things. And in this we have discussed about कि living things and non-living things क्या होते हैं. हमारे आसपास जो सारी चीजें present हैं, they all are categorized into living and non-living things. And after that we have discussed about the features of living things. And in that these features are helpful for us to categorize the living things and non-living things, or to help us to differentiate between living and non-living things. The features are, first one is living things grow, and we have learned or we have discussed that all living things grow, and we have seen an example of a seed, that if we sow a seed into a soil, and by the passing of time it change into a seedling, then change into a young plant, and later on it forms a very big tree. And if we take the example of us, at the time of birth we are a small baby, then by the passing of time we grows into a infant, then a child, and later on we form to a adult human being. So all living things grow, but non-living things do not grow. They will remain as such. I'll give you an example of chalk. This chalk also, that it will remain as such after 2 years, after 3 years. If I don't touch it, it will remain as such. It is possible to break down into smaller one, but it do not grow. Next, living things need food and water, and we know that all the living things need food and water to get energy to perform the activities. अपनी सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? फूड एंड वाटर चाहिए होता है. एंड प्लांट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, एंड द प्लांट्स वर ईटेड बाय द अदर एनिमल्स आल्सो टू गेट एनर्जी. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स मूव. सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पे in search of food, water and shelter, and to protect themselves from the enemies. अपने लिए फूड के लिए, अपने लिए वाटर के लिए, अपने लिए प्रोटेक्शन के लिए और शेल्टर के लिए भी जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. कुछ एनिमल्स जो है वो हंटिंग के लिए भी जा रहे हैं, कुछ प्लांट्स को खाने के लिए भी जा रहे हैं, तो मूव करते हैं. बट if we talk about the non-living things, they do not move from one place to another until and unless something or someone pick that thing or someone help that non-living thing to move. Then we have discussed that plants जो है उनकी जो roots होती है, they bind up the plants into the soil. और that's why the plants cannot move. Plants एक जगह से दूसरी जगह move नहीं करते, but some parts of the plant show movement. Then this thing we have discussed in our previous class, in our yesterday's class. Today we have to start living things breathe. सारे जो living things हैं वो क्या करते हैं? Breathe करते हैं. And breathe, this is the mechanism of taking of oxygen inside our body. जो ऑक्सीजन हम लोग breathing के लिए यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या है? That process is known as breathe. And all the living things breathe. अगर हम बात करें most of the animals और हम human beings भी हैं, we use our nose to breathe, to intake oxygen. कुछ यूज करते हैं nose को, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं और कुछ एनिमल्स भी हैं. वहीं पे अगर हम बात करें कि जो फिश है, फिश यूजेस इट्स गिल्स. नोज यूज कर रहे हैं, ह्यूमन यूज कर रहे हैं नोज को. अगर हम बात करें फिश की, फिश यूजेस इट्स गिल्स. गिल्स को यूज करती है टू ब्रीथ ऑक्सीजन, टू ब्रीथ एयर. देन अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो ग्रीन प्लांट जो है वो भी ब्रीथ करते हैं. एंड दे यूज द स्टोमेटा और द टाइनी होल्स प्रेजेंट इन द लीव्स. उनकी जो लीव्स होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, जो हेल्प करते हैं प्लांट्स को ब्रीथ करने में. देन इफ वी टॉक अबाउट द इंसेक्ट्स, अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें कि बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है, दे हैव some holes. उनकी बॉडी में स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं that help them to breathe in air. स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं.
और उसी को हम बोलते हैं स्पेरिकल्स भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेरिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसी को स्मॉल होल्स को हम बोलते हैं स्पेरिकल्स। सिमिलरली अगर हम बात करें कि जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग में उनकी जो मॉइस्ट स्किन प्रेजेंट होती है दैट हेल्प देम टू ब्रीथ। उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनकी मॉइस्ट स्किन हेल्प करती है उन फ्रॉग को ब्रीथ करने में। बट दिस इज अबाउट द लिविंग थिंग्स। सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो ब्रीथ करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, वो ब्रीथ नहीं करते। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड रिप्रोड्यूस इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग राइज टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। अपने ही जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करना कहलाता है रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। स्मॉल बेबीज होते हैं उनके, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनके भी क्या होते हैं, स्मॉल उनके बेबीज होते हैं। जैसे कैट के लिए किटन है, डॉग के लिए पपीज है, डक के लिए डकलिंग है, लॉयन के लिए कब है, काउ है, बफेलो के लिए काफ है। तो उनकी जो प्रोसेस of give rise to young ones of their own kind। अपने ही जैसे young one को प्रोड्यूस करना कहलाता है रिप्रोडक्शन, एंड ऑल दी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अगर हम बात करें प्लांट्स की, वो भी क्या करते हैं, उनमें जो सीड होता है उससे क्या होता है, सीड को हम सोन करते हैं सॉइल में, दैट विल ग्रो इनटू अ सीडलिंग, एक यंग प्लांट बन गया और उससे क्या बन जाता है, लेटर ऑन ट्री बन जाता है। लेकिन सीड जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है प्लांट से। बट कुछ जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके जो यंग बेबीज होते हैं, दे रिसेंबल देयर पेरेंट, वो अपने पेरेंट जैसे ही दिखते हैं, बट द डिफरेंस इज इन देयर साइज ओनली। जैसे हम हैं, हमारे जो यंग बेबीज होते हैं वो हमारे जैसे दिखते हैं, डॉग के यंग बेबीज डॉग के जैसे ही दिखते हैं, बट द डिफरेंस इज ओनली इन साइज। बट अगर हम बात करें जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, तो उनमें क्या होता है, जैसे कि उससे कुछ प्लांट्स में जो न्यू प्लांट अगर हमें ग्रो करवाना है तो हम लोग स्टेम से, रूट से, लीफ से भी ग्रो करवा सकते हैं। बट अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन मीन्स कि कोई लिविंग थिंग कब तक लाइव है, उसका लाइफ स्पैन कितना है। एक टाइम होता है, एक एज लिमिट होती है कि इस ऑर्गेनिज्म की लाइफ इतनी है, यानी द टाइम ऑफ फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उसके बर्थ से डेथ के बीच में जो टाइम होता है दैट इज नोन एज लाइफ स्पैन। टाइम बिटवीन बर्थ एंड द डेथ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन। और ये सब ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो हमारी जो लाइफ स्पैन होती है दैट इज अबाउट टू 70 ईयर्स, 65-70 ईयर्स। अगर हम बात करें डॉग की, दैट इज अबाउट टू 10 to 12 ईयर्स। अगर हम पैरट की बात करें उसकी अबाउट टू 140 ईयर्स। अगर हम बात करें किसी भी इंसेक्ट्स की, बटरफ्लाई जैसे उनकी होती है 28 to 30 डेज, यानी अबाउट टू 1 मंथ। अगर हम बात करें पाइन ट्री की, उसके अबाउट टू 300 ईयर्स। एक टॉर्टोइज है उसकी 150 ईयर्स के आसपास होती है। सो लाइफ स्पैन सबका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो टाइम बिटवीन बर्थ एंड डेथ, टाइम बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज लिविंग। बट अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ स्पैन। उनकी कोई लाइफ स्पैन नहीं होती है, उनकी कोई एज लिमिट नहीं होती है। किसी भी चीज को नॉन लिविंग थिंग्स एग्जांपल लेके रखो, वो एज इट इज रहेगी, सिर्फ वो हम ब्रोकन डाउन होती है जब हम उसको डैमेज करते हैं, अदरवाइज वो ऐसी ही रहेगी, कोई उसका लाइफ स्पैन नहीं होता। देन लिविंग थिंग्स कैन फील चेंज इन द सराउंडिंग। जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं उनको फील करते हैं। एज वी ऑल नो दैट वी आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन्स।
eyes to see, nose to smell, ears to hear, tongue to taste and skin to feel. तो ये सारे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे सराउंडिंग में जो चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने में. इफ वी स्मेल की स्मेल आ रही है तो आप तुरंत उसको अप्रिशिएट करते हैं. सिमिलरली हमने कोई अच्छी चीज देखी, हमारी आई जो है बहुत खुश हो जाती है उसको देख के और वी आर गोइंग टू रिएक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. तो हमारी जो सेंस ऑर्गन है वो हमें हेल्प करते हैं हमारे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने में. सिमिलरली अगर हम देखें प्लांट का, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई से आप हिंदी में बोलते हैं मिमोसा, उसी प्लांट का नाम है. जब उसकी लीव्स को हम टच करते हैं तो वो कर्ल अप हो जाती है ड्यू टू स्टिमुलस, यानी हमने उसको टच किया और वो क्या करती है, कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है. तो प्लांट जो है वो भी सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स, वो अपने सराउंडिंग के कोई भी रिएक्ट या कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते. द लास्ट इज लिविंग थिंग्स गिव आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स. जो लिविंग थिंग्स हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, गिव आउट करते हैं, रिलीज करते हैं. सो एज वी ऑल नो डैट हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं पूरे दिन में, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी जो हम कहाँ से मिलती है, हमें फूड से मिलती है. सो वी आर टेकिंग फूड टू गेट द एनर्जी एंड विद दैट एनर्जी वी आर कैरी आउट आवर डेली एक्टिविटीज. सारी एक्टिविटीज हम कैरी आउट करते हैं, लेकिन इन एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के साथ साथ हम हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स भी रिलीज करते हैं. तो जैसे कि हम स्वेट रिलीज करते हैं, टीयर्स रिलीज कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटा ऑल्सो हम लोग हमारी बॉडी से वेस्ट रिलीज करते हैं, यूरिन भी हम लोग रिलीज करते हैं. तो सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, बिकॉज ये वेस्ट जो है डेट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. एक तरह से ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, यूजफुल नहीं है, वेस्ट है, काम का नहीं है. दैट्स व्हाई लिविंग थिंग्स हैव द प्रॉपर्टी टू रिलीज आउट दिस वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी. एंड उसके बाद अगर हम देखें जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, गम रिलीज करते हैं. कुछ प्लांट जो होते हैं वो लेटेक्स रिलीज करते हैं. तो जो गम है दैट वी यूज फॉर पेस्टिंग आउट द थिंग्स, दैट वी यूज एज अ एडहेसिव, वो क्या है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का. सो ऑल द लिविंग थिंग्स गिव आउट वेस्ट प्रोडक्ट. अपनी बॉडी से जो वेस्ट है उसको रिलीज कर देते हैं बिकॉज दे आर हार्मफुल फॉर देयर बॉडी. देन इफ यू टॉक अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज नहीं करते. सो this is about our today's class. We have discussed about the different features of living things, and on the basis of that we made a difference between living and non-living things. Living things grow करते हैं, non-living things do not grow. Living things need food and water, but non-living things do not need food and water. Living things move from one place to another in search of food, water and shelter, but non-living things do not move. Living things breathe. लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, रेस्पायर करते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ स्पैन. लिविंग थिंग का कुछ लाइफ स्पैन होता है. इट मीन्स दैट इज द टाइम बिटवीन देयर बर्थ एंड डेथ, and it is different from organism to organism, but non-living things do not have any lifespan. Then living things can feel changes in their surrounding. That all living things have the sense organs that help them to react to their surrounding according to the changes in their surrounding, but non-living things do not react to their surrounding, to the changes in their surrounding. Next is living things give out waste products, but non-living things do not give out waste products. So this is all about your today's class. I hope all understood this. Thank you and have a nice day.